The recording has started, and there is a comment on one of my videos. I love to look at the stars in the sky. In this sentence, I understand the uses of in the sky because the sky is the only one on the one like the earth, the moon, the world, the sun, but the stars, I don't get it. Rohit, you are watching if you watch this video by chance, then I would like to tell you. Oh, Rohit is Rohit one of my students? I don't know. Um, the less you think about the articles, the better for you. Articles are not something you'll understand easily because they don't exist in your language. They do a job, and first thing you should do, all of you, okay, understand one basic structure or basic idea of article. The article the, you know, we use the mainly when we are talking about a noun that the listener is familiar with. The listener is okay. And how he becomes familiar or the listener becomes familiar is a very interesting idea. Means there are many ways, many reasons. If I say, let's close the door, then which door I'm talking about, here the listeners will understand for some reasons. And that's why I said close the door. So this is the most basic idea. Other than this, don't waste your energy trying to understand, articles. It's so random, the use of the. One rule makes clear that, okay, this the is correct here. And the same rule will not apply on another noun sometimes. And we will call it an exception. Strange. So the best thing is get used to it. I like looking at the stars. I like, okay. However, in this case, we have a small explanation. These stars क्यों बोलते हैं? Because जितने भी इस दुनिया में जो हमारे पास यूनिक चीजें हैं, उनके लिए हम द लगाते हैं. द स्काई, द ओशन, राइट. तो स्टार्स भी तो अपने आप में यूनिक है. बोलेंगे यूनिक कैसे? उनका आइडिया जो स्टार्स है, स्टार्स अपने आप में यूनिक है, इसलिए द स्टार्स. गॉट इट? I like looking at the stars in the sky. Just a second. Let's see. The next thing, what are we studying? We are in Unit 8, and there was some homework. Let's check the homework first. I only suffer from this viral infection. Fortunately, yeah, HMP, no. I'm saying I only suffer from this viral infection. This is a common viral flu.
it happens when you just don't take care of yourself in the change of weather. Okay. When you try this kind of, adventurous thing, you eat a big guava in the evening. Normally, a 45-year-old man has issues like blood pressure, sugar, and stuff. Thankfully, I am free from it all. But when it comes to, immunity from cold, then I'm not so good. And the problem is I risk myself. I push myself too much. I should have simply avoided eating that guava on the 31st of December. Do you remember studying so does Bill, so does somebody else? And you sisters practiced. I appreciated that. Hmm. Everybody celebrated the Independence Day. Everybody celebrated. So did we. हम लोग भी किए. हाँ, सो मतलब इसलिए नहीं है, गलती से भी सो का मतलब इसलिए नहीं निकालना है, राइट? It only talks about similarity. The same thing is true about us. So did we. Mom was very happy. So was I. माँ बहुत खुश थी. हम भी बहुत खुश थे, है ना? So this so idea, the word so here doesn't give the literal meaning इसलिए. It gives the meaning भी. Okay? It is true for me as well. One statement is true. Everybody was happy. Okay? And now the same statement is true about my family. Then I will say, everybody was happy, so was my family. Okay? Any problems? So this is how we use this. So अभी चूंकि अच्छे से समझ में आ गया है आपको, तो आई थिंक आई कैन टीच यू द नेक्स्ट लेसन. ठीक है? अगर नेगेटिव होता तो क्या होता दोस्तों, कि हम लोग खुश नहीं थे. नो बट जैसे बोलो कि सर खुश नहीं थे, हम भी खुश नहीं थे. सर वॉज नॉट हैप्पी. नहीं, यही पर फर्क है तुम्हारे समझने में. मैं बता देता हूँ. वो अरेंजमेंट ठीक वही रहेगा. सो था ना सिमिलैरिटी बताने के लिए. अभी सिमिलैरिटी बताने के लिए नॉर यूज कर लेंगे. बाकी वही रहना. सर वॉज नॉट हैप्पी, नॉर वॉज आई. नॉर. हाँ. जस का तस वो रहना. कोई टेंशन. मम्मी खाना नहीं खाए. मम्मी खाना नहीं खाई. हम भी नहीं खाए. हेलो शम्स. हेलो शम्स. शम्स बेटा. हाँ शम्स बोलिए. गुड आफ्टरनून बेटा. ओके. फाइन फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम.
हाँ, आज हम ब्रेकफास्ट नहीं किया। आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। हम भी नहीं किए सर। नो, ना ना, फास्ट की बात है, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया ना। तो अब प्रेजेंट से उसका कनेक्शन, सुबह 8 बजे 9 बजे हम लोग ये बात बोले तो बोलेंगे कि ये नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर बाय द वे फॉर अनदर डे। बेसिकली पे अटेंशन टू दिस। हम हम सिगरेट नहीं पीते। आई डोंट स्मोक। हम भी नहीं पीते सर। नॉर डू आई। तो क्या फर्क पड़ा? वो खाली सो जो था ना भी के लिए, अब वो भी के लिए, क्योंकि पॉजिटिव भी था वो, ये नेगेटिव भी है। हम सिगरेट नहीं पीते भाई। सर हम भी नहीं पीते सर। आई डोंट स्मोक सर। नॉट डू आई। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्लो ऑफ द लैंग्वेज समझना। हम कितने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखते हैं अलग अलग तरह की चीजें, ठीक है, लेकिन वो एक चीज अप्रिशिएट नहीं करवाते बच्चों से, और शायद वो उनके बस से नहीं है। हमारे बस में भी उतना नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए बच्चों को, ये बताना चाहिए कि इसके तरफ कोशिश करिए। एंड द एफर्ट शुड बी मेड टुवर्ड्स कि आप अप्रिशिएट करिए इस भावना भावना को जिसके साथ ये बोली जा रही है इस बात को। ठीक है। जैसे मैंने हिंदी क्यों बताई है, इसलिए नहीं कि इसकी ये हिंदी होती है ऐसा बोल करके एक दिमाग में जगह बना दो, नहीं। जैसे ये है वैसे ही इंग्लिश में ऐसे करते हैं, ये करने के लिए नहीं कि इसकी हिंदी होती है ये करके दिमाग में बैठा लो, बात खत्म। हर एक जगह जैसे फ्लो, फ्लो एक भाषा की चीज होती है ना। जैसे हम बोलते हैं आपको, भाई हम सिगरेट नहीं पीते सर, हम भी नहीं पीते हैं। ये हम भी नहीं पीते जैसे आप रिएक्ट करते हो ना, तो वैसे ही ये रिएक्शन है, नॉर डू आई। ओके। तो अभी पता चला कि वो सो किस लिए था, वो पॉजिटिव भी बताने के लिए, और अगर नेगेटिव भी बताना है तो नॉर। और एक और ऑप्शन है नाइदर। नाइदर डू आई। इट्स, अच्छा मुझे कोई कहेगा कि बहुत मुश्किल चीज है सीखने के लिए, तो मैं कहूंगा तुम एकदम गंवार इंसान हो फिर, सॉरी। मेरे सोचने का एक नजरिया है। मैं मानता हूँ इंग्लिश में बहुत सारी चैलेंजेस है। ये सो और नॉर का आइडिया मुश्किल नहीं है। आप वो डज में और डिड में परेशान होते रहेंगे सर। वहां बी भर लगा दोगे गलती से, जहां डू लगना चाहिए। आप समझ रहे हो, वो इंग्लिश की प्रॉब्लम है। लेकिन ये लॉजिक जो है कि वो क्यों सो आ रहा है क्यों नॉर आ रहा है, इट इज एज सिंपल एज एबीसी इन माय ओपिनियन। व्हाट डू यू गाइस से? कि भाई हाँ बोलना है तो सो है, और ना बोलना है तो नॉर है। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है भाई? ना कुछ दिमाग लगाना ना कुछ, बस हाँ या ना से डिसाइड कर लेना है इसको। ये अग्रीमेंट दो एक जैसी बातों के लिए है। एक ने कहा हम सिगरेट नहीं पीते हैं, दूसरे ने कहा लेकिन हम पीते हैं। इसमें सो और नॉट दोनों में से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों अग्रीमेंट में आए ही नहीं बातें। राइट। एक ने कहा हम पीते हैं, दूसरे ने कहा लेकिन हम नहीं पीते। इसमें सो और नॉट में से किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अग्रीमेंट में बात आई नहीं। तो कुछ चीजें होती है जिसको मैं समझता हूँ प्लेन लॉजिक से आदमी फट से समझ जाए। तो फॉर टू माई माइंड दिस यूज ऑफ सो एंड नॉर इज वेरी वेरी सिंपल। It shouldn't be a very difficult idea. Huh, the challenge is the helping verb. If your tense understanding is not very good, then you will not be very sure after so or nor which helping verb you will use. And only the helping verb is enough. पापा जाएंगे, पापा विल गो। हाँ हम भी जाएंगे। राइट, वहां विल है क्योंकि पापा विल गो।
पापा इज गोइंग, हम भी जाएंगे, पापा जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, पापा इज गोइंग, हम भी जा रहे हैं। सो एम आई, पापा इज गोइंग, सो एम आई। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि यही तो है इंग्लिश सीखना, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, थिंग्स गेट इजी। लेकिन ये सो और नॉर का आइडिया कितना ही मुश्किल है? नॉट एट ऑल। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट, चैलेंजिंग? फिर रीजनिंग गड़बड़ा जा रही है फिर आपकी, अगर उसमें मुश्किल हो रही है तो। इट हैज नथिंग टू डू विद इंग्लिश भाई। हाँ ना, बस दो बातें, दो हाँ वाली बातें सो से कर सकते हैं ऐसे, दो ना वाली बातें नॉर या नाइदर। इजी। पेज नंबर 50, पेज नंबर 50, 49 we did, right? And page number 50 I shared with you ना, मैं कह रहा था ना आखिरी क्लास, when before I stop teaching. गाइस आपने होमवर्क करा है तो चेक करते, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। ओके, पेज नंबर 50, exercise 6 we did. Okay, part 1 we did, we are going to do part 2, and in part 2 there are 4 parts. Listening section, because there was a long break, अगर हो जाता है कभी कभी, बच्चे हैं आप लोग, नहीं पढ़े, ध्यान नहीं रहा, सर नहीं पढ़ा रहे आजकल, तो होमवर्क नहीं किया। ओके, is that the reason, or you have done it? Okay, good. Let me play the audio. Listen to the conversation. Exercise 6, parts 1 and 2. Part 1. Good evening. Hello. Can we have a table for 2, please? Notice the environment, notice the tone. Tell me, is it informal or formal? If you remember, some days ago, we had another conversation at an Italian restaurant. Good evening, guys. Right? And now notice this one. Part 1. Good evening. Hello. Can we have a table for 2, please? Did you make a reservation? क्या लग रहा है, टोन से क्या लग रहा है? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल टोन इज इन, फिर वर्ड्स पे ध्यान दो, इट्स स्लाइटली फॉर्मल। ये सब चीजें किसी जगह बात ही नहीं करी जाएंगी, क्योंकि किसी को हिंदी इंग्लिश से आगे कुछ लेने देना नहीं है। बाइनरी है इंग्लिश सिखाने में। बाइनरी मतलब होता है दो चीज, जैसे हिंदी ये है तो इंग्लिश ये है, ये राइट है ये रॉन्ग है। ये बाइनरी से बाहर जाना होगा अगर इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। शादी कैसी रही भाई की? यहाँ तो किसी को मिठाई पसंद है नहीं, तुम लोगों को मिठाई तो पसंद है नहीं, नहीं है ना? नहीं, सदाकत के भाई की शादी हुई, सिस्टर की। अच्छा छोड़ भाई, सॉरी गलती हो गया, उसमें तो ऐसे ही खर्चा होता है, सॉरी यार, सॉरी, हमको लगा भाई की शादी हुई। अच्छा चलो, कोई नहीं कोई नहीं, हालांकि हालांकि कर सकता था, हाँ, लेकिन खैर जाने दो। बेटा, मैं हमारे क्लास में चिंदी छोरी नहीं, खास के लड़कियों के लिए तो मिठाई लाने का बनता था। यही तो मौका आता है ना भाई, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा नजदीकी बढ़ाया जाए, है, मिठाई खिलाया जाए। क्या भाई? सदाकत, भाई द वे, सदाकत यहाँ जैसा रहता है ना, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती इस लड़के की। मैंने बताया था श्लोक के बारे में ना, अरे बाबा, ये लड़का का बॉडी लैंग्वेज, ये डिम्पल तो पड़ता ही है, स्टाइल में चलता है एकदम, लड़कियों के साथ एकदम कोजी कोजी बिहेव करता है ये बाहर में। यहाँ इसका कुछ नहीं चलता बेचारा, इंग्लिश में कमजोर है, यहाँ पर पीछे रहता है। इंग्लिश ठीक कर ले, यहाँ भी अच्छा हो जाएगा इंप्रेशन। Okay, I was expecting Mahapara. She's not here. अच्छा, No, we didn't. no, we didn't. Excuse me. Sorry. Good evening. Good evening.
Good evening. Good evening. The waiter. Good evening. Hello. Can we have a table for two, please? Can we have a table for two, please? Easy sentence. Can we have a? It means there are two people. So they want a table for four people go. Then they will not say, can we have a table for two, please? They will go and say, can we have a table for four, please? Please. Did you make a reservation? Did you make a reservation? Reservation किए थे? Did you make a reservation? बुक किए थे? जगह बुक किए थे? हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में जगह, यहाँ तो बुकिंग की जरूरत भी नहीं है. No restaurant asks you to make a reservation. No restaurant asks. They always have extra seats because they're never full. Okay. Only during the Shahara Mela, you will have to wait outside sometimes because there are no seats available. All the Dehati people want to, हिंदी में कहते हैं गधा जन्म मिटाना होता है उनको, रेस्टोरेंट जाना है. नहीं लेके गया हस्बैंड तो घर जाते तो सुनाना है, अच्छा रेस्टोरेंट नहीं लेके गया. You know, why do wives have this line? मेरे को ये कराए वो कराए. My wife also, my wife earns a salary. She can do everything on her own. लेकिन मेरे को सुनाएगी. मूवी दिखाए हैं 1 महीना में. दिखाए हैं. मैंने कहा मेरे आंख से दिखाएंगे, देखो रूप. Okay. I mean, last time we were there, she bought the tickets, 600 rupees there in Gaya. Okay. And she says, movie दिखाए हमको. I don't understand her. Okay. So, did you make a reservation? No, we didn't. No, we didn't. No खाली बोलना is not considered very polite. है ना? कभी भी खाली नो खाली यस बोलना अच्छा नहीं लगता. आप उसको बैक करिए कुछ पोलाइट शब्दों से. नो वी डिडंट और नो आई फॉरगॉट टू. है ना? कोई जरूरी नहीं कि वो वी डिडंट मजबूरी है आपकी. इट साउंड्स गुड दैट वे. पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है. टीचर ने सिखाया नो वी डिडंट बोलना. अब आपने मैसेज ले लिया कि ये मजबूरी है, किसी को आप गलत बोल रहे हैं, वो नो बोल रहा है, तो आप उसको समझाओ कि इंग्लिश कल्चर में नो बोलना इज कंसीडर्ड रूड. आप खाली नो बोल के चुप हो जाते हैं तो इट्स नॉट वेरी नाइस. इट्स बेटर टू से नो वी डिडंट. दिस वे यू साउंड मोर फ्रेंडली, मोर पोलाइट. डिड यू मेक अ रिजर्वेशन? नो. इमेजिन, कंपेयर दिस. डिड यू मेक अ रिजर्वेशन सर? नो. तो ये पोलाइट नहीं समझा जाएगा उनके कल्चर में. और नो आई फॉरगॉट टू, इसमें वी डिडंट नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपने कुछ ऐड करा ना पोलाइट होने के लिए. नो आई फॉरगॉट टू, वाज दैट नेसेसरी? यस सर, हियर वी ओनली हैव कस्टमर्स विद रिजर्वेशंस. वी आर वेरी मच इन डिमांड, कैन यू डू समथिंग नाउ? बात ऐसे भी जा सकती है ना. वो कोई जरूरी है कि वैसे ही बातचीत जाए जो आपने सुना. The conversation could take this turn as well. Okay. Did you make a reservation? No, we didn't. Well, Well, ये मैं कर रहा हूँ कि यही क्या कर रहा होगा वेटर भी. उसका no we didn't सुन के क्या कर रहा होगा? Well, yes. yes, Yes. अच्छा दिखा. Yes. we have a table. We have a table. हाँ है एक जगह है. We have a table. अब यहाँ we have a table मतलब उसके यहाँ बाकी जगह टेबल नहीं, एक टेबल है उसके पास. ऑब्वियस है कि शाब्दिक अर्थ से आपको बाहर निकलना पड़ता है. कई बच्चों को वी हैव अ टेबल का हिंदी दिखेगा में हम लोग के पास एक. आप क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों को? अगर उनको लिख के कोई दे वी हैव अ टेबल, ये हिंदी करें, मेक सेंस. ये कॉन्वर्सेशन सुन के ये हिंदी करेंगे तो हम कहेंगे उनका इमेजिनेशन संन्यास ले लिया है ना. उनका इमेजिनेशन मर गया है. क्योंकि ऐसे में कौन बोलेगा हमारे पास एक टेबल है? उसने ऐसे ऐसे किया, बोला हाँ सर हाँ है एक टेबल है. वी हैव अ टेबल. और वी हैव अ टेबल इसलिए पता चलता है इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं आई यू वी दे से कुछ बोलते हैं, एक कोलोकियल होता है. वी हैव अ टेबल.
Over here, please. Thank you here, please. Over here, please. Over here. A little bit of distance. और distance cover कर लीजिए. Over here. यहाँ पे. और ये जो word over है, that shows the distance. refer करता है. Over here, please. जहाँ पे ना वहां से यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. Over here, please. हिंदी में एक फ्रेज है यहाँ पे, है ना, मैच कर जाता है. Over here, please. very much. Thank you very much. Jenny is happy. She is being polite. Thank you very much. Jenny, would you like to sit there? Jenny, would you like to sit there? ठीक है, दोनों तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं. दूर से खड़े होकर जेनी वो ठीक है जगह बैठ जाए वहां, या जब बैठ रही तो उसको बगल में चलने के लिए बोल दिया कि भाई थोड़ा सा उधर वाला पे बैठ जाना. तो would you like to sit there? Either situation, I don't know, I'm not there. Maybe they're at a distance and the husband asked, जेनी ठीक है वो जगह जहां बेटा दिखा रहा है वो सही है, would you like to sit there? Right. एक ये हो सकता है ऑप्शन. Another option is कि जेनी वो थैंक यू बोल करके बैठने लगी तो उसने कहा उस पे बैठ जाना. तो would you like to sit there, जेनी? मे बी इधर कोई लड़का लड़का बैठा होगा, साजिद टाइप. ना तबीयत खराब है, बस और कुछ नहीं. बदला लिया जाएगा. मेरे को भेजा था वीडियो, मजाक कर रहे. Yes, that's Yes, of course, no problems. Yes, of course. fine. That's fine. That's fine. हाँ ठीक है. दोनों ही सिचुएशन. उसने जब उससे पूछा तो हाँ, और ऐसे वाला would you like to sit there? That's fine. हाँ बैठ जाते वहां भी, no issues. Now they are sitting. Part 1 is over. Part 2. Part 2. So first part was about finding a seat, finding a table. Let's practice this part. Let's practice this part. 3 people are needed. Let's do the question answers. There are 2 questions. Question number 1 is, did Mike make a reservation? No, he didn't. Next question. Is there a table? 3. Yes, there is. Yes, there is. Done. Now practice the conversation, this part 1, with 3 people. Okay, 3 people will work together and they will enact the conversation. खाली लाइन बोलना नहीं है, वो एक्चुअली करके दिखाना है. 2 लोग ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और एक अगला जो वेलकम कर लेगा. गुड इवनिंग, हेलो, कैन वी हैव अ टेबल फॉर 2 प्लीज? Did you make a reservation? No, we didn't. Oh yes, there is a table. Jenny, would you like to sit there? Yeah, that's fine. Hey, Anna, come on, let's do it. Practice, but not in your seats, because I said enact the conversation. Enact करने के लिए थोड़ा हलचल चाहिए होगी, right? Shams, you are absent on the wrong day, beta. Go ahead, guys. Practice. Enact the conversation. You guys are so lazy, stuck to your chairs still. If I was your age, I was, I would be jumping out of my chair, excited to do this role play. Enact the conversation. Okay, you 3. All right. You 3 here. You 3 there. You are there, 3 people. वहां 3 भी पकड़े गए हैं. Shashi, here with these 2. All right. अच्छा है, फिर भी घट ही जाएंगे. 3 लोग उधर है. Which 3 people? Tabriz, Sajid and Mashuk. तीनों. पापा को बोलना बेटा कि हमें परमानेंट पार्टनर चाहिए. Yeah. You can come here, beta, join them. Yes. Have him in your team, okay? इधर आ जाओ बेटा, जरा. Come a little closer to me. You move a little closer. Yes.
do the role play multiple times. If you are the husband this time, next time you can be the waiter. Okay, like this. Swap the roles each time. Only part one. Only part one. हाँ हाँ हाँ। शशि क्या हुआ बेटा? ऑडियो स्क्रिप्ट, इसमें 4 लाइन में ऑडियो स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ गई। कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? तो जिन को क्या लाइन बोलना था? पूरे पिक्चर याद है? आपने काम किया है, होमवर्क करा है? यही वजह नहीं कर पा रहे। पहले बताना था, प्रिपेयर्ड नहीं है। दूसरे का भी काम खराब हुआ ना। कोई बात नहीं बेटा, आप चले जाओ भैया के पास, वो दोनों भैया के साथ प्रैक्टिस करो। और आप दोनों को ध्यान रखिए, आपको जो काम दिया है उसको करके आया करिए, तभी अगला लेवल होता है। यहाँ 4 दिन का ब्रेक था। देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, हाँ दे दो बेटा। ये देखो, यहाँ देखो। ये सब करने से पहले ये देखो, ये देखो। अच्छा बेटा, आसान है। देख लो, ऑडियो स्क्रिप्ट देख लो।
Ready for part 2? Okay. आपके लापरवाही ने आपको अब तक इंग्लिश में पीछे रखा है, मेरे पास आके भी लापरवाही करोगे तो लापरवाही मत करो, स्ट्रगल करो। स्ट्रगल एंड लापरवाही में फर्क है। स्ट्रगल में आदमी कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है। लापरवाही में कोशिश नहीं कर रहा है। ओके आपका एक एक स्ट्रगल यहाँ आपको नई अंडरस्टैंडिंग देगा, आई गारंटी यू। हर एक सवाल आपके जहन में, स्ट्रगल होंगे तो सवाल भी आएंगे। एवरी क्वेश्चन यू विल आस्क विल गिव यू a unique understanding of the problem that you have when you share it with me. तो स्ट्रगल करो, ये लापरवाही मत करो। लापरवाही मतलब मेरा रोल जीरो कर दे, तुम हम है ही नहीं वहां पे फिर। तो फिर ये नहीं कह पाओगे कि हम विनय सर से सीखे। यू विल नॉट बी एबल टू से दैट व्हेन यू आर लापरवाह। लापरवाही मत करो। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, तुम अपना बेस्ट भी दे करके जितना सीखोगे ना किसी भी जगह, मान लो तुम अपना बेस्ट दिए कहीं पे, तुम में से कुछ ऐसे हैं जिनकी नेचर में बेस्ट देना, ठीक है, तुम यहाँ रहो चाहे कहीं भी रहो, बेस्ट दोगे, तुम्हारे नेचर में है ये चीज। सम ऑफ यू आर दैट काइंड ऑफ पीपल। ओके नाउ तुम अपना बेस्ट भी कहीं दे के जितना सीखोगे वो यहाँ के कुछ बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा रहेगा। ये मेरा पॉइंट है। लेकिन लापरवाही में तो वो जगह ये जगह बात बराबर हो गई। कोई भी जगह तुम रहोगे विल बी द सेम थिंग, बिकॉज लापरवाह हो गए, मैं ही पिक्चर से आऊं। When you are doing your best, then this place will get you to your best potential, to help you get your best results. देखो बेटा, वो द स्टार्स के बारे में बात कर रहे थे ना, I like looking at the stars in the sky. Okay? तो जब ऐसे करके सोचते हैं तो आप, जब हम द स्टार्स बोलते हैं तो आपको समझ में आता है वही स्टार जो उस समय सर को दिखते हैं। इसलिए जब आपको पता चल गया तो मैंने द लगा लिया। कौन से स्टार्स भाई? अननोन है आपके लिए? नहीं। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल देके बता देता हूं। आई गो टू द क्लब जस्ट टू लुक एट द विमेन देयर, जस्ट टू लुक एट द विमेन देयर। मैं जाता हूं क्लब सिर्फ वहां की औरतों को देखने के लिए। तो अब कौन सी विमेन है बताओ? ए स्पेसिफिक ग्रुप जो वहां होती हैं। तो वैसे ही यहाँ कौन से स्टार्स को देखता हूँ? स्पेसिफिक ग्रुप जो विजिबल होता है मेरे सामने रात में। तो इसलिए जो भी स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसको आप, मैं बता चुका कौन सा, आपको पता है कौन सा, तो फिर आप उसके पहले द लगा देते हैं, है ना? समझिएगा, जब आपको पता होता है जैसे मैं बोलूं बेटा कि विमेन, तो मैं सिर्फ विमेन की बात करूं, द नहीं लगा सकता बेटा। सिर्फ विमेन की बात करूं मतलब कि कोई भी औरत, औरतें, लड़कियां, गर्ल्स, लड़के, बॉयज, दूध, मिल्क। जनरल केस में द नहीं लगा के बात करना है, नॉर्मल रूल। पहले तो बातचीत में जब जनरल बातें बोलनी है प्लूरल से बोल दो। बोलना है औरतें ना, कोई आदमी नेगेटिव सोच रहा, औरतें भरोसे के लायक नहीं होती है, उसका ही ऐसा सोच है। बस वो कहेगा विमेन, विमेन आर नॉट ट्रस्टवर्दी, विमेन आर नॉट, ये उसकी सोच है उस आदमी की। ना ना, औरतें भरोसे के लायक नहीं होती। ठीक है, किसी औरत की सोच है मर्द भरोसे के लायक नहीं होता है। वो किसी स्पेसिफिक मर्द की बात कर रही है, किसी स्पेसिफिक मर्दों के ग्रुप की बात कर रही है। मेन आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं लड़कियां, लड़कियां बड़ी बातें करती, बहुत बोलती हैं लड़कियां, तो किन लड़कियों की बात कर रहे हैं? जनरल सभी। ये जो तुमने दो वर्ड्स बोले, जनरल सभी, ये समझ सबके दिमाग में है। जनरल सभी दो वर्ड से मुझे कॉन्फिडेंस है, वो समझ गया बच्चा। उसने जैसे ही जवाब दिया जनरल सभी, तो हाँ, गर्ल्स टॉक अ लॉट, नॉट द नीडेड, गर्ल्स टॉक अ लॉट। ऐसे केसेस में द नहीं लगाते आप। ओके, सीधे सीधे बोल देते हैं। दूध बहुत बहुत फायदेमंद चीज है। कोई खास दूध? दूध सारा का सारा दूध जनरल। मिल्क इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी न्यूट्रिशियस। मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस। ओके, तो द मिल्क नहीं बोला मैंने,
लेकिन जैसे ही आपको पता चल गया कि वो कोई खास स्पेसिफिक ग्रुप है, स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है, तो आप द लगा दो। लड़कियां ना बहुत बहुत मेहनती है। अब मैं समझ आ रहा हूँ कौन लड़कियों की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा द गर्ल्स आर वेरी हार्ड वर्किंग। लड़के बहुत रिस्पेक्टफुल है, भले ही मजाक करते हैं बहुत रिस्पेक्टफुल। अभी मैं किन लड़कों की बात कर रहा हूँ, आपको अंदाजा है ना? अगर मैं ऐसा बोलता द बॉयज आर वेरी रिस्पेक्टफुल, तो आप क्या लड़कों के बारे में सोचते दुनिया के, या इन लड़कों के बारे में सोचते? हाँ, यही है फर्क। द बॉयज, उसमें साजिद को हटा देना, एक्सेप्शन है। साजिद को हटा के सोच रहे थे। तुरंत थैंक यू बोला, बोला कि मेरा भी शामिल कर लिया था, सर का दिल बड़ा है। ओके। तो द पॉइंट वाज कि द बॉयज मतलब ए स्पेसिफिक ग्रुप। तो हमेशा याद रखना, नोन अंडरस्टूड ग्रुप को कहेंगे द, और इन जनरल में नो द। क्या बोला मैंने? द मतलब नोन एंड स्पेसिफिक, अंडरस्टूड समझा हुआ कि कौन सा, जाना हुआ कौन सा, उसके पहले द। जो नहीं जाना हुआ अननोन जनरल, तो बिना द। द योगर्ट वॉज वेरी वेरी बैड, मतलब इसका हिंदी बोलो। हाँ, ये मतलब कि वो जो है दही हम लिए, वो जो दही हम खाए वही वाली दही। यानी कि ये द योगर्ट मतलब नॉर्मल योगर्ट की बात नहीं हो रही है, जनरल बात नहीं हो रही है। अगर जनरल योगर्ट की बात होती तो हम खाली क्या बोलते? योगर्ट। इसका एक एक्सेप्शन है इस रूल का, इतना बढ़िया से ये रूल समझ में आया ना? इसका एक एक्सेप्शन है, पढ़ाई लिखाई के फील्ड में द और सिंगुलर नाउन कभी कभी पूरे ग्रुप के लिए यूज होता है। द प्लस सिंगुलर नाउन, प्लूरल नहीं, सिंगुलर नाउन कभी कभी पूरे ग्रुप के लिए यूज होता है, समझ में आ जाएगा। द लायन, है ना, द लायन बोल करके कभी कभी पूरे लायंस की बात करी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई लिखाई में कभी कभी यूज होता है। इस चीज को इग्नोर करके चले, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग B2 लेवल तक ना आ जाए, उसके बाद ही ये रूल का ज्यादा मायने रखेगा कि द प्लस सिंगुलर नाउन रेफर्स टू द होल ग्रुप। ये रूल अभी खासा ध्यान देने का जरूरत नहीं, जो सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा था वो वाला। इन जनरल बात करना है, प्यार अंधा होता, द लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। जो प्यार है मेरे दिल में तुम लोगों के लिए, उसको तुम समझ नहीं पाओगे। The love I carry, the love I have for you guys, you will not appreciate it, I know. Okay, कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर द लव आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपने अंडरस्टूड कर दिया, लिमिट कर दिया ना। हाँ, ऐसे सिंपल लव के बारे में बात नहीं कर रहे, जनरल बात नहीं कर रहे। जो प्यार मेरे दिल में है तुम्हारे लिए, ओके, द लव आई फील फॉर यू, द लव आई कैरी फॉर यू, ओके, राइट। कर लेंगे, ये छोटा सा दिमाग में रखेंगे ये वाला आइडिया। इससे द का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, समझने वाला। और रटने वाले तो धीरे 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 ऐसे भी हो जाएंगे कि नदियों के पहले द लगाते हैं, आपको पता चल जाएगा। आपने द निन्या, द मिनता, द पिंटा करा था ना, तो वो सब क्या थे? शिप्स थे। तो आपको द लगाना है कहाँ? शिप्स के पहले। अब इसमें कोई रूल ही नहीं है, बस ये आदत बन जाएगी धीरे धीरे, इसमें कोई समझ नहीं चाहिए। द टाइटैनिक और टाइटैनिक, बात खत्म। द विक्रांत और विक्रांत, हाँ पता है ना, द विक्रांत इज एन इंडियन नेवल शिप। ओके गाइस, ये बहुत बेसिक आइडिया था जो मैं कोशिश कर रहा आपको समझाने की। द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एन अननोन, नोन जिसको हम जानते हैं, अंडरस्टूड जिसको हम समझ रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रुप, है ना, वहां लगा। या द सिंगुलर के लिए भी द गाय इन द कॉर्नर, स्पेसिफिक, गॉट इट? स्पेशल नहीं, स्पेसिफिक।
स्पेशल वर्ड कंफ्यूज कर देता है लड़कों को, लगता है स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल स्पेसिफिक में बिग डिफरेंस है। ज्यादा टीचर स्पेशल वर्ड बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है स्पेशल का मतलब क्या होता है। लड़कों के दिमाग पे स्पेशल वर्ड से क्या असर जाता है। स्पेशल नहीं बोलिए, स्पेशल के लिए द नहीं यूज होता है, स्पेसिफिक। द मोबाइल आई हैव, चलो पार्ट 2 के लिए रेडी। अभी सुना, द गर्ल्स आई डेटेड। आपको पता चल गया, एक सर्टेन ग्रुप की बात करो, कौन कौन सी लड़कियां जिनको मैंने डेट किया था। द गर्ल्स आई डेटेड, ओके, वर नॉट हंग्री फॉर मनी, वर नॉट, ओके। पार्ट 2, What would you like to drink? now they are sitting at the table, on the table, sitting on the table, at the table, on the table, सरफेस पे बैठना, सरफेस ऑन, टेबल पे बैठते हैं। हाँ, तो यही दिमाग लगाइए कि दोनों का फर्क क्या हो गया। Will you go to a restaurant and sit on the table? Maybe you will. And then people will think of you as the dish. क्योंकि ऑन द टेबल क्या होता है, खाने वाला कि खाने खाए जाने वाली चीज, राइट। तो आप बैठ गए टेबल पे तो लोग आप ही को खाना समझ जाएंगे कि अच्छा, लेकिन यहाँ आदमी नरभक्षी नहीं है, तो आप सेफ हैं। ओके, नेक्स्ट। मैं और बताना चाह रहा था, ये ऑन और एट का आइडिया थोड़ा फर्क समझ लीजिए एग्जांपल्स के थ्रू। ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क, एट द डेस्क वैसे ही बगल में, ऑन द पियानो, एट द पियानो। अब आप बताइए, गांधी जी वर्कड ऑन द चरखा और एट द चरखा? एट द चरखा, ऑन द चरखा, चरखा टूट जाता है, चाहे गांधी जी जितने कम वजन के थे, चरखा वुड हैव ब्रोकन, राइट। ये तो एट द मतलब समझ रहे, आइडिया थोड़ा सा बदल जा रहा है थोड़ा सा, राइट। अब उसको लफ्जों में एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, समझ बनती है जब आपके पास, यहाँ पर जितना एवरेज आईक्यू वाला बच्चा है वो सब इस बात को समझेगा कि सर ने कहा ऑन द टेबल, बट एट द टेबल जैसे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, तो उसको बोल सकते हैं आई एम सिटिंग एट द, आई एम सिटिंग एट टेबल नंबर 19, आई एम सिटिंग एट, सपोज रेस्टोरेंट हैज टेबल नंबर्स, राइट। हम फोन करके बता रहे हैं आजा रेस्टोरेंट में है, नंबर 19 नंबर टेबल पे है हम। हिंदी में तो पे ही बोलते भाई, हिंदी में 19 नंबर टेबल पे ही है, मैं भी नहीं बोलते, 19 नंबर टेबल पे है। इंग्लिश में आई एम सिटिंग एट टेबल नंबर 19, राइट। या बड़ा बाबू तो डेस्क पे ही नहीं अपने, बड़ा बाबू तो अपने डेस्क पे है ही नहीं, बड़ा बाबू इज नॉट at his desk, बड़ा बाबू is not at his desk। and और भी बता देते हैं, जैसे कि जैसे कुछ भी I am at the, हाँ absolutely I'm at the computer, okay, not on। तुम सारे लोग बता दोगे, राइट, पक्का है ना। और उसमें एक और ऑप्शन है, इन द चेयर। जब चेयर हो ना ऐसे 3 डायमेंशनल टाइप का बन जाए, तो आप उसमें इन द चेयर भी बोल सकते हैं। और एक और बात, बस इतना ही अभी रहने देते हैं, ऑन द चेयर, इन द चेयर, खाली इतना ही, बट एट द चेयर तो होगा नहीं, ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस। ओके बेटा, वहां पे दरवाजे पे एक आदमी खड़ा हो जाए, दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। ऑन द डोर होने के लिए उसको स्पाइडरमैन होना पड़ेगा। A Spider-Man can be on the door, but other people will be। तो इतना एग्जाम्पल से धीरे धीरे समझ बनेगी। अगले इन एग्जाम्पल्स को यूज करके चौथा नया जगह पे
ये ज्यादा सही लग रहा है, ऐसा करना. Rules will not help anybody. Let's move on. Part 2. Part 2. What would you like to drink? I'd like a glass of white wine, please. What would you like to drink? What would you? Easy question, so repeat the line. What would you like to drink? I would like a glass of white wine. Please. And you? Acknowledgement. And you? Rap, sir. And you? I'll have the same, please. I'll have the same, please. I will also have a glass of white wine. I'll have the same, please. So, 2 white wines. So, 2 white wines. ये लिखा है ना? So, 2 white wines. And now notice wines. Wine is normally uncountable. But in a restaurant, because you are taking orders for 2 people, it became countable for practical reasons. So 2 white wines. It means 2 glasses of white wine. Are you ready to order? Are you ready to order? Are you? Are you ready to order? Yes, I think so. Yeah, I think so. I think so. Jenny, what would you like? Jenny, what would you like? What would you like? Jenny, what would you like? What's the soup of the day? What's the soup of the day? What's the soup of the day? Jenny, what would you like? Let's go back. Yes, I think so. Like a glass of white wine, please. And you? I'll have the same, please. So, 2 white wines. 2 white wines. वो अपने आप को कंफर्म करवा रहा है लिख के. So 2 white wines. He brings the wines and then he asks, Are you ready to order? Are you ready to order? White wine ला के रख देता है, right? मेरे ख्याल से. और उसके बाद पूछता है, Are you ready to order? Are you ready to order? Order means 3 things. Order आज्ञा. Everybody knows. Order means arrangement. Things are not in order here. Things are not in, मतलब आगे पीछे, चीजें आगे पीछे है, सब उलट पलट है यहाँ. Things are not in order. ठीक है? The words are not in the correct order. The words are not in the, मतलब उल्ट आगे पीछे लिखा है. They are not in the correct order. Okay? And एक और सुना होगा law and order. और अगर if you guys are following my YouTube channel, then I made a nice community post. Read and give a like and a comment. क्योंकि तुम लोग अगर like comment नहीं करोगे तो बाहर वाला कब करेगा भाई? घर के लोग नहीं करेंगे तो बाहर वाले करेंगे. ठीक है? साजिद has given me a comment, I think. दूसरा अकाउंट. तो you know that I like you a lot, right? But I care about you, and that's why I sometimes criticize you for being a little flamboyant. You're young. हमसे गलती होती है तो हम इतना अफसोस करते हैं. दुनिया माफ करने वाली नहीं है भाई. अपने लोग जो होते हैं ना, मैं सच बताऊं दोस्तों, हम सब जितने लोग यहाँ पर, जितने लोग हैं, मैं यहाँ सबके बारे में बोल सकता हूँ. 100% लोग बड़े इमोशनल लोग हैं सारे, और अपने दोस्त को, अपने यार को हमेशा बचाएंगे मुसीबत से. सारे कहते हैं ना, रूल्स रेगुलेशंस को साइड रख के बचाएंगे. लेकिन सब लोग नहीं ना है से बाहर वाले, तो उनको उनका काम क्यों मुश्किल करें? ठीक है?
हम जब यंग थे तो हम भी ऐसी मुश्किल वाले बात बोल देते कर देते थे, जिससे कि घर मतलब होता है ना कि जो लोग अपने लोग हैं उन पर प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है बातें, कि जो लोग अपने हैं उनको तो आप प्रेशर ना बढ़ाएं, ठीक है। तो साजिद को हम बहुत परवाह करते हैं उस बच्चे की, लेकिन वो समझता नहीं है मेरी बात। समझता है क्या? हम्म। टॉक टू मी आफ्टर द क्लास। तो वेयर वर वी? Yes, I think so. Are you ready to order? So order has multiple meanings. One meaning of order is order, agya. Ram went to one jungle, the forest, on the order of his father. Okay. तो order मतलब होता है ना, it is my order, do it now. Okay. तो order वो सब लोग जानते हैं. Okay. You can't give me orders. I don't take orders from you. I don't take. हाँ. Okay. तो ये ऑर्डर एक हो गया। दूसरा ऑर्डर क्रम है, ठीक है। एक्सरसाइज 1, द वर्ड्स आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, वी पुट दोज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, क्रम हो गया वो। और तीसरा ये हो गया, everybody knows this word now because we order things online now, so everybody knows this order as well. Order is a verb. Okay, did you order anything in last 1 week? Have you ordered anything in last 1 week? Okay. You ordered a Bluetooth. I ordered a Bluetooth device. Okay, nice. Fine. A pair of Bluetooth headphones. Okay. Order, right? And similarly, when you are in a restaurant, you can order food as well, right? So are you ready to order? Jenny, what would you like? What's the soup of the day? What's the soup of the day? It's tomato soup. It's tomato soup. It's tomato soup. Okay. Then can I have the vegetable tart, please? Okay, then can I have the vegetable tart, please? From this conversation, I'm not saying we are 100% certain, but what do you understand? What do you conclude? She is very fond of tomato soup, or she's not very fond of tomato soup? She's not very fond of tomato soup. अब कुछ को समझ नहीं आया, fond of क्या बोल दिया आप बीच में? Means she doesn't like tomato soup a lot. Okay, she's not very fond of tomato soup. Okay, because when he said tomato soup, then she said, okay, then can I have the vegetable tart, please? She ignored it. It means she doesn't like tomato soup a lot. हो सकता है हम लोग गलत है, but most probably हो सकता है उसने कल ही पिया tomato soup maybe. But anyways, she says, can I have the vegetable tart? Okay, vegetable tart, it's a dish, it's a starter dish. English food meals can be broken down into 3 parts. First part is called the starters, main course, and dessert, right? So starters are usually something which are not very heavy, like salads, soups, and stuff like this, vegetable tart and stuff. Okay, so these are called starters, and main course is a heavy dish, and then the third thing is dessert. And your main course? And your main course? I'd like the salmon. I'd like the salmon. Look at the menu and look at the spelling of salmon. What is the spelling? Which letter is silent? L is silent. Salmon. This is the menu. Main course. Salmon. Can you see the spelling of salmon? Keep going. You will see the spelling of salmon. Can you see the spelling of salmon? SALMON. Which letter is silent? And we pronounce salmon. It's a type of fish. Yeah. उसको लोग रोज खाते हैं.
Okay. Salmon. Uh-huh. It's tomato soup. Okay. Then can I have the vegetable tart, please? Can we have the vegetable tart, please? Can we have the... And your main course? I'd like the salmon with a salad. With a salad. With a... Very good. And you, sir? And you, sir? I'd like the prawn cocktail to start. I'd like the prawn cocktail to start. Prawn cocktail. A cocktail is a mix of drinks. Mix of drinks. Cocktail is a... And that is the most basic meaning of a cocktail. Okay. Cocktail. C-O-C-K-T-A-I-L. Cocktail. A cocktail is a combination of one or more spirits mixed with other ingredients such as juices, flavored syrups. कहते हैं ना कि हमको एक से काम नहीं चलेगा, 3-4 चीज मिला के दो. असली नशेड़ी ये होते हैं. Tonic waters, shrubs, bitters, cocktail. So a cocktail usually comes in a fancy glass, in expensive, bars. Yeah. I have never tasted even a single drink like that, spirited drink. Spirits, उसमें क्या? Spirits मतलब alcohol, right? Cocktail. अब बताओ, life में भी cocktail हो जाता है. There is a movie Cocktail. 2 girls fall in love with the same guy, and the guy also falls in love with them, and he decides to be together. Cocktail बना रहा है. Right. Have you seen this movie, Cocktail? It was a flop film, but the story was interesting and the songs were really fun. Deepika Padukone was there. Yeah, she always does such characters, That's why traditional people hate her. Okay. Where were we? Prawn cocktail. Prawn is a seafood. Prawn is a seafood. Have you seen prawns? They are called jhinga, I think. Yeah, pink color. Prawn cocktail. You must search, Google it, prawn cocktail, the image of prawn cocktail. They come in glasses. There is no drink there. Okay. Yeah, prawns will be in the glasses, called prawn cocktail. Bhaiya dish hai to hai, prawn cocktail. So he would like to start with prawn cocktail. Yeah, and And for your main course? I'd like the steak, please. And for your main course, I would like the steak, please. Steak is a dish. How would you like it cooked? How would you like it cooked? How would you like it cooked? आपको कैसा चाहिए होगा? How would you like it cooked? कैसा चाहिए होगा? Rare, medium, or well done? Rare, medium, or well done. When you say rare, the meat is not very well cooked. Medium is medium cooked, and well done means very well cooked. So different people have different tastes, different preference. Medium, with some chips, please. Certainly. So meat and potatoes. Meat and healthy dish. I didn't know this. I learned a few days ago that when you're eating meat, red meat, beef, pork, whatever, okay, if you're eating red meat, then if you eat potatoes with them, with the red meat, then it's better for you, for digestion and for nutrients. You digest the nutrients better. पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है यार. आदमी को बहुत सारा चीज पढ़ने का. ये कैसा समझ है भाई कि भाई मीट खाना है, रेड मीट खाना है. अगर मटन खा रहे हो और भी कुछ खा रहे हो उस तरह का रेड मीट, तो आलू डाल दो साथ में, या साथ में बगल में आलू रखो कुछ खाने के लिए. इससे आपका फायदा ज्यादा होता है, उस मीट का फायदा आपको ज्यादा मिलता है. I didn't know this until 2-3 days ago. And do you want still or fizzy water? Do you want still or fizzy water?
Fizzy, please, for me. Fizzy. And me. That's fine. Part 3. Part 2 is over. We have 10 minutes. So first of all, I'm going to play all the parts so that you guys can practice at home as well. 3. How was your meal? Acha, wait, let's do the question answers. What do Mike and Jenny have to drink? They have different things. Mike has a glass of white wine. Oh, they have the same thing. Sorry, my bad. They have the same thing. They both want a glass of white wine. What is the soup of the day? The soup of the day is tomato soup. What does Jenny choose as a starter? She wants. आप बोल सकते हैं she chooses, आप बोलिए she wants, आप बोलिए she orders. कोई दिक्कत है बेटा? जैसे बन वैसे बताएंगे. She wants a glass of, no, she wants a vegetable tart. Okay. She would like a vegetable tart. Okay. And अच्छा बेटा, ये मैं बोल रहा हूँ, वहां उसने द बोला. ठीक है, क्या फर्क है मैं समझा देता हूँ. हमने एक सिर्फ ऐसे कहा कि उसको वेजिटेबल टार्ट चाहिए. शी वुड लाइक ए वेजिटेबल टार्ट. लेकिन द वेजिटेबल टार्ट मतलब वो वेजिटेबल टार्ट जो वो रेस्टोरेंट ऑफर कर रहा है. क्योंकि मैंने कहा था द मतलब नोन अंडरस्टूड. तो नोन अंडरस्टूड क्या हो? वो वेजिटेबल टार्ट जो वो रेस्टोरेंट ऑर्डर कर रहा है. तो उसने कहा कि आपका जो वेजिटेबल टार्ट है वो ले आइए. आई वुड लाइक द. तो द वेजिटेबल टार्ट मतलब हो गया कि अंडरस्टूड कौन वाला भाई, जो आपके यहाँ है वो वाला लेके आइए, वेजिटेबल टार्ट ले आइए. आई वुड लाइक द. So she would like the vegetable tart, and we can say she chooses the vegetable tart. Okay, a vegetable tart भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, because इससे खाली वो डिश का नाम हुआ, उस जगह का vegetable tart है, ये नहीं हुआ. Okay, next. What does she want as a main course? She wants salmon with a salad. With a salad. How does Mike want his steak cooked? He wants it medium. He would like it medium cooked. He would like it medium cooked. Okay, 8. What does he want with it? He wants some chips. He ordered some chips. हमेशा फ्री महसूस करो अपने तरफ से तरीके से बोलने का. फ्रीडम उसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग, जो किसी किसी एग्जाम में बहुत जरूरी है. वहां के जैसे लिखा आप उसी बात को अपने तरीके से बता रहे हैं. डू दे वांट स्टिल और फिजी वाटर? आस्क फॉर. दे बोथ आस्क फॉर फिजी वाटर. जवाब में क्या बोल दिए? क्योंकि आस्क फॉर मतलब मांगना होता है. दे बोथ आस्क फॉर. वहां आस्क फॉर नहीं लिखा, हम अपने तरफ से बोल दिए. दे बोथ आस्क फॉर फिजी वाटर. दोनों को फिजी वाटर चाहिए. दे बोथ आस्क फॉर फिजी वाटर. Very good, thank you. My salmon was delicious. How was your meal? How was your meal? आके पूछा खाना खत्म होने पे. Very good. My salmon was delicious. Would you like to see the dessert menu? Would you like to see the dessert menu? Dessert menu दे आपको? Would you like to see? No thanks. The dessert menu बोला होगा. समझ रहे हैं क्यों बोला होगा? जो dessert menu उस रेस्टोरेंट का है वो वाला. हमारा जो dessert menu वो चाहिए आपको. Would you like to see the? Could we have the bill, please? No, we don't want the dessert menu. Okay, could we have the bill, please? Of course. Could, can, both can be used to make polite request. Could you open the door? Can you open the door? बातें हुई थी दोनों के बीच इस बारे में. क्या कंफ्यूजन हुआ था मेरे बच्चे, बताओ. Move your chair a bit. Use could. इन आपको पेज दिखा देते बेटा. Good. Yes. Unit page 5, last page. Can and could both can be used to make polite request.
आप लोग ऐसे हेल्थी इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, एक दूसरे से बातें करिए। आपको पता नहीं खेल खेल में आप एक दूसरे को कितना मोटिवेट कर दीजिएगा मेहनत करने के लिए। एक बड़ी वजह इंग्लिश को हमेशा पढ़ाई समझा गया, और बहुत खतरनाक पढ़ाई समझा गया है जो संभलती नहीं है लोगों से। और आप बात बात में इसमें पढ़ाई हटा दे सकते हैं और खेल खेल में सीख सकते हैं। अगर महापरा उस दिन, क्योंकि वो एब्सेंट रही है, काफी नहीं हो रही होंगी, उनको नहीं पता होगा ये बात। किसको पता रहेगा भाई? कुड को हमेशा हम लोग समझते हैं पास्ट टेंस ऑफ कैन। तो भाई बोल दे कुड यू मूव योर चेयर अ लिटिल बिट, तो बोले कुड क्यों, पास्ट टेंस में क्यों बोल रहे हो? इट्स नॉट पास्ट टेंस। Is service included? No, इज सर्विस इंक्लूडेड? it isn't. नो इट इजंट। Part 4. It was a lovely meal. Thank you very much. It was a lovely meal. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Bye. See you again soon. कितने देर में साजिद? See you again soon. घर पे पूछेगा हस्बैंड, तड़ाक तड़ाक, see you again soon. बेल्ट से। ओके, हमारा कल्चर अलग है, तो वी फाइंड इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। यहाँ वो औरतें 199 नहीं बोलेंगी वेटर को कुछ भी अपने तरफ से। And this girl said, see you again soon. All right. So that's why we kind of noticed it. Otherwise, a normal thing for them, nothing strange at all, just because of the culture. Okay. This is called cultural gap, cultural difference, guys. So what will you do at home? You will, of course, practice the same conversation, audio file, and जो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी ग्रुप में कर लेना, रिकॉर्डिंग देख के। I'll try and upload the recording. I know last couple of recordings were not uploaded, I think, for my health reasons, and I'll try to be more regular. Of course, I sound better than the last time you saw me. So I think I'll improve. I'll get better and better, because I'm not very badly sick or something. It's just that the weather was getting cold, and I ate a guava, that too at night at 7 o'clock. Stupid me. So let's meet tomorrow. Hopefully we will be productive this week. Yeah. And maintain that English environment with each other, that's very important.